Good morning students, welcome again to our next part of class 7th English. We are doing chapter 3, Gopal and the Hilsa Fish. Today we will be discussing the question answers of this chapter. You all remember in the last 3 parts we discussed about the whole story of this chapter, and this chapter is in a type of a comic book. You all like reading comic books, right? So we read this chapter as if we were reading a story in a comic book. Now let me summarize you before doing the question answers about this chapter. In this chapter, a man named Gopal used to live in a province of Bengal in a small village, and the season was monsoon season. In this season, lots and lots of hilsa fish were commonly found in the rivers. They were caught from the rivers and they were sold in the markets. The prices came very down because there was a bumper production of hilsa fish. Lots and lots of hilsa fish were produced in that season from the rivers. Now you all know, everybody in this village and even in the court or the palace was talking about hilsa fish. King got very angry. One of the courtiers also started discussing about the hilsa fish, and he said to the king, Your Majesty, you must have seen the fish which I bought. आपको वो मछली ज़रूर देखनी चाहिए थी जो मैंने बाजार से खरीदी. वो बहुत बड़ी थी. It was very huge. And the king got very angry. Finally, the king scolded the courtier. King ने बहुत ज़ोर से डांट लगाई उस courtier को. ठीक है? अब courtier उम्र में बड़े थे, so he felt very ashamed to be caught in front of the whole court. सारे कोर्ट के सामने उनको बहुत ज़ोरदार डांट पड़ी. इससे वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे. राजा then felt very bad. राजा felt guilty of what he did. राजा को बुरा लगा कि उसको सबके सामने डांट नहीं लगानी चाहिए थी. Then he said, What can I do? मैं क्या करूँ? मैं परेशान हो गया ये डिस्कशन से. I am fed up of this hilsa fish and everybody is talking about the hilsa fish. I don't want this anymore. Not even Gopal in our court is able to grab the attention of the people away from hilsa. गोपाल जो हमारे कोर्ट का मस्खरा है, वो भी लोगों का ध्यान हिल्सा फिश से दूर नहीं कर पा रहा. ठीक है? And then he challenged Gopal that you have to buy a hilsa fish from the market, bring it through the village to the palace and finally to the court. And the condition will be that nobody will talk about that hilsa fish. राजा ने क्या बोला? एक चैलेंज दिया गोपाल को कि आप एक हिल्सा फिश खरीदेंगे मार्केट से, पूरे मार्केट और गांव के बीचों बीच से उसको लेकर आएंगे पैलेस तक और फाइनली कोर्ट तक, दरबार तक. लेकिन शर्त यह है कि उस हिल्सा फिश के बारे में कोई भी इंसान चर्चा नहीं करे. ठीक है? ये इम्पॉसिबल सा था बेटा, बिकॉज एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा. ठीक है? वो मतलब दैट वॉज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द कन्वर्जेशन इन दैट विलेज. उस समय हिल्सा फिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी उस विलेज में और हर कोई उसके बारे में ही बात करता रहता था. आज तुमने कितने में खरीदी? मैं इतने में लाया. तुम कितने पैसे में लाए? तुमने ज़्यादा दिए, तुमने कम दिए. ठीक है? दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट द हिल्सा फिश. मैंने बड़ी खरीदी, तुमने छोटी खरीदी. ठीक है? देन व्हाट हैपेंड? किंग gave the challenge. He threw the challenge on Gopal, and then Gopal said, okay, fine, now I will do this challenge. He went to his home, stayed there for a few days. He did not come out of his house, and he then grew his beard. उसने अपनी beard बढ़ाई, दाढ़ी को बढ़ाया. One day he half shaved his face. एक दिन उसने अपना आधा face shave कर लिया. आधा बालों से भरा हुआ था, आधा शेव, आधा बालों से भरा हुआ. Then what did he do? He smeared ash on his body. पूरे शरीर पे, फेस पे उसने राख को लेप लिया था. And then he wore rags. फटे पुराने गंदे चिथड़े जैसे उसने कपड़े पहने. And his wife was shocked and amazed as well to see what Gopal is doing. Then she asked him, why are you dressing in such a funny cloth? He said, I am getting ready to buy a hilsa fish from the market.
अपनी वाइफ को गोपाल ने कहा कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में और उसी के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट। वाइफ सोच सोच के परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई हिल्सा फिश खरीदने जाता है क्या, हो सकता है ये पागल हो गया हो, मे बी ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। But Gopal did not care. He went out of the house in that same getup, bought the hilsa fish and then started moving towards the palace through the village. उसने फिश खरीदी और पैलेस के रास्ते पे चल पड़ा गांव के बीचों बीच होते हुए। Then people were talking about something. Was it hilsa? No. People were talking about Gopal and his getup. Nobody paid attention to the hilsa which he had in his hands. Nobody paid attention to the hilsa fish which he had in his hand. Everybody was talking about his face, his getup, his clothes, and everybody said he is a mystic. ये कोई साधु महात्मा या सन्यासी बन गया दिखता है. Somebody said he is a madman. ये पागल आदमी है. But still Gopal started moving to the palace. Finally he went to the court and in front of the court the guards stopped him. Guards ने उसको रोक दिया. They did not allow Gopal to enter the palace. उन्होंने क्या बोला गोपाल को, ऐसे भिखारी को राजा से मिलने कौन देगा बेटा? No one will allow the person to meet the king. Okay? And Gopal knew if he will say that I am Gopal, he will be allowed to enter. But the guards were also not able to make out that this is Gopal. They did not recognize him at all because he was dressed up in a very funny way. And Gopal also did not want to tell the guards that I am Gopal. Otherwise, his plan would have gone away. Then they did not allow him to enter the court. What did Gopal do? He thought of a trick. उसने एक trick सोची. क्या trick थी? क्या उसने सोचा बेटा? He started singing and dancing loudly. जोर जोर से गाने और नाचने लग गया गोपाल in front of the court. जोर जोर से गाने लग गया तो राजा तक आवाज पहुंची. राजा heard the noise which came from outside and he also asked his guard to bring that man inside the court. Finally, Gopal was inside the court now with his hilsa fish, but still in his court people were not talking about the hilsa. They were all talking about Gopal and his funny getup. Finally, Raja told, what is this Gopal? Some of the courtiers recognized him as Gopal and then Raja said, okay Gopal, now tell me why are you dressed up in such a funny way? Gopal said, King, don't you remember your challenge which you threw on me some days before? Then Raja said, what challenge? Have I forgotten something? Then Gopal said, yes, your majesty, you threw a challenge on me that I have to bring a hilsa fish from the market to the palace and nobody should talk about that fish. And I am here in front of you. And you can see I am having a fish in my hand, but still nobody is paying attention to the fish, but everybody is looking at me. Raja was very happy. The king said, you have won the challenge, and same was Gopal. Gopal was also very happy. So this is the happy ending of the story. Hope you all understood very well. Now we will start with the question answers. So come along. First question is, why did the king want no more talk about the hilsa fish? Now you all remember the king was fed up of the people who were talking about hilsa fish, even in his court. बेटा आपको पता है एक राजा को या कोई भी हाई अथॉरिटी होती है, they have so many works to do. ठीक है, to uplift their kingdom or to uplift their province. अपने उत्थान के लिए, अपने एरिया के अच्छे काम करने के लिए उनको बहुत डिसीजंस लेने होते हैं, प्लान्स बनाने होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है. ठीक है, वो लोग ही अगर बैठ के सिर्फ हिल्सा फिश की बातें करेंगे जो कि हर कोई कर रहा है पूरे गांव में, everybody is talking about hilsa fish in the village, okay, but they are not making decisions. पर जो गांव के लोग हैं वो लोग कोई अथॉरिटी नहीं है, they are not making decisions or they are not in power, so they can talk anything what they want.
बट एक राजा और उसके कोर्टियर्स का टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है एंड दे कैन नॉट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम इन टॉकिंग दिस फुलिश थिंग. ठीक है, इसलिए राजा परेशान थे कि इतनी बकवास बातें हो रही हैं, अब इनको बंद करो. ऑलराइट, एवरीवन अराउंड द किंग was talking about Hilsa fish. You all know. हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा था. This had infuriated the king, so he didn't want anyone to talk about the Hilsa fish. राजा एजिटेट हो गए थे बेटा, वो बहुत अंदर से हिल गए थे ये सारी बकवास सुन सुन के. हिल्सा फिश, हिल्सा फिश. अरे यू आर अ कोर्टियर, यू आर इन अ कोर्ट, यू आर इन अ अथॉरिटी, you are still talking about the Hilsa fish. There are so many things to do, right? So this was the reason Raja got fed up of all these things. Second question, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा ने क्या किया गोपाल को ये प्रूव करने के लिए कि वो चालाक है. ठीक है, clever means चालाक, चतुर. All right. The king asked Gopal to buy a huge Hilsa fish from the market and to ensure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace. You all know, राजा ने क्या चैलेंज दिया था गोपाल को कि उसको एक ह्यूज फिश खरीदनी है मार्केट से, पूरे गांव के बीचों बीच उसको लेके आना है पैलेस तक. लेकिन किसी को भी हिल्सा फिश का डिस्कशन नहीं करना चाहिए रास्ते में, ऐसा उन्होंने चैलेंज दिया था, कंडीशन रखी थी. राजा चैलेंज्ड गोपाल to buy a Hilsa fish from the market, bring it through the village to the palace, and the condition was that nobody should talk about that Hilsa fish. ठीक है, ये उसका चैलेंज था, ये आप सब लोगों को पता है, और गोपाल चैलेंज जीत भी गया था. Third question, what 3 things did Gopal do before he went to buy the Hilsa fish? Now you all know what did Gopal do. First, Gopal half shaved his face. सबसे पहली चीज जो गोपाल ने की थी वो ये थी कि उसने अपना चेहरा आधा शेव कर लिया था. What was the second thing? Second thing was he smeared ash on his face as well as his body. उसने राख को अपने फेस और पूरे शरीर के ऊपर लेप लिया था. ठीक है, this was the second thing he did. What was the third thing? Third thing was he wore torn and old clothes, dirty clothes. फटे पुराने कपड़े उसने, रैग्स उसने पहन लिए थे जो पहनने के कोई काम में नहीं लेता. ओके, चिथड़े जिसको बोलते हैं, nobody wears that, वो उसने पहने थे. So the 3 things were half shaved his face, smeared ash on his body and face. Third one, he wore rags. ठीक है, अपना हाफ शेव फेस कर लिया, राख लेप ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए. These were the 3 things which Gopal did. Gopal half shaved his face. This is the first one. We all know. Smeared ash on his body. अपने शरीर पे क्या किया? Ash को smear कर लिया, लेप लिया. And he wore rags. फटे पुराने कपड़े पहन लिए फिश खरीदने जाने से पहले. All right, understood everyone? Take the next question. How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? गोपाल पैलेस में कैसे एंटर हुआ? Because guards were not allowing him to enter the palace. You all know. They had crossed their arms like this. अपने जो भाले थे वो उन्होंने ऐसे क्रॉस करके उसके सामने रख रखे थे और उसको बिल्कुल एंटर नहीं करने दे रहे थे. गार्ड्स वर सेइंग नो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द किंग्स कोर्ट. गोपाल ने क्या किया? व्हाट ट्रिक ही प्लेड? ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली. आप सबको पता है गोपाल ने बहुत जोर जोर से गाना और नाचना शुरू कर दिया था ताकि राजा उसकी आवाज सुन सके और खुद ही उसको कोर्ट में बुला ले, है ना? और उसकी ट्रिक सफल भी हो गई थी, है ना? ही पास्ड इन दैट ट्रिक. Gopal started singing and dancing in front of the palace at a loud voice. He started singing and dancing. कैसे?
एट अ लाउड वॉइस, बहुत जोर जोर से वो गाने और नाचने लग गया था. द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड. राजा ने वो शोर सुना और अपने गार्ड को बोला कि उस आदमी को अंदर लेके आओ. He asked his guard to bring that man who is shouting outside to bring him inside the court. तो गोपाल की ट्रिक सफल भी हो गई थी, है ना. नेक्स्ट, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. आप बताओ, कोई भी हिल्सा फिश जो गोपाल ने खरीदी थी या चल रहा था जिसको लेकर, उसकी तरफ कोई देख के बात ही नहीं कर रहा था. एक्सप्लेन. यू ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ हिज वियर्ड एंड फनी गेट अप. उसने अपना भेस ही ऐसा धारण कर रखा था कि किसी का हिल्सा फिश पे ध्यान ही नहीं जा रहा था. एवरीबडी वॉज जस्ट लुकिंग एट गोपाल एंड थिंकिंग ही इज अ मैडमैन और अ मिस्टिक. ठीक है, ऐसा ही था ना बेटा. सबका ध्यान किस पे था? गोपाल पे था. हिल्सा फिश पे था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही फनी तरीके से आपने कभी देखा है किसी भी इंसान को हाफ शेव करके मार्केट में? अगर कोई ऐसे आ भी जाता है तो व्हाट विल यू डू? नॉट इवन यू बट एवरीबडी अराउंड यू. सब लोग किसको देखेंगे? उस हाफ शेव्ड फेस को ही देखेंगे. येस और नो? बिकॉज दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. ठीक है, तो भीड़ से हटके कुछ अलग आप करते हो, वियर्ड आप करते हो, दैट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल रूटीन और लाइफ, देन एवरीबडी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स यू. ठीक है, गोपाल ने भी ऐसा ही किया. नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश गोपाल हैड बॉट. किसी को इंटरेस्ट नहीं था उस हिल्सा फिश में जो गोपाल ने खरीदी थी, बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन. क्योंकि गोपाल की खुद की ही जो कंडीशन थी वो ही बहुत मजेदार थी, देखने लायक या अटेंशन ग्रैब करने लायक थी. ही वॉज वेयरिंग रग्स. ही वॉज वेयरिंग व्हाट? वेरी ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स. हिज फेस वॉज हाफ शेवन. फेस कैसा था? आधा शेव्ड. एंड एश वॉज स्मियर्ड ओवर हिज बॉडी. और उसके पूरे शरीर पे क्या था? एश थी. ठीक है, राख पूरे शरीर पे उसने लेप ली थी. पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस देन द फिश. नाउ पीपल वर मोर इंटरेस्टेड. पीपल जो थे, जो लोग थे, उनका ज्यादा इंटरेस्ट या रुचि किसमें थी बेटा? गोपाल के गेटअप में, इंस्टेड ऑफ द फिश विच ही हैड बॉट. गोपाल के ऊपर उसकी अटेंशन ज्यादा थी लोगों की, इंस्टेड ऑफ द फिश, उस फिश की बजाय, क्योंकि उसका बहुत ही अटपटा सा, मजेदार सा, फनी सा गेटअप था. ठीक है, नाउ वी विल डू द ट्रू और फॉल्स पार्ट. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है जो भी सेंटेंस हैं उनके आगे. फर्स्ट वन इज द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली. बताओ, राजा को जल्दी से गुस्सा आ जाता था क्या? लॉस्ट हिज टेम्पर मीन्स अपना आपा खो देना. ठीक है, राजा जल्दी से गुस्सा हो जाते थे क्या? दिस इज ट्रू, क्योंकि सिर्फ फिश की बात करते ही गुस्सा हो गए थे राजा, है ना, तो वो जल्दी से गुस्सा होते ही थे. सेकेंड, गोपाल वॉज अ मैडमैन. बताइए, गोपाल एक मैडमैन था, पागल आदमी था क्या? नो, ही वॉज नॉट अ मैडमैन. दिस इज फॉल्स. गोपाल तो बहुत समझदार था, एक मस्खरा था, एक जेस्चर था राजा के कोर्ट में, है ना. वो तो सिर्फ लोगों को हंसाने का ही काम करता था, वो पागल नहीं था. वो एक्ट्स ऐसे करता था या जोक्स ऐसे क्रैक करता था जिससे कि लोगों को हंसी आए. एक लाइट सा एनवायरनमेंट रखता था वो अपने आसपास में. ठीक है, ही वॉज नॉट मैड, वो पागल नहीं था. लेकिन ये जो पागल वो बिहेव कर रहा था, वो किस लिए कर रहा था? बिकॉज दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज चैलेंज, क्योंकि वो उसके चैलेंज का एक पार्ट था. थर्ड, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन. गोपाल चतुर या समझदार था, क्लेवर था? यस, ही वॉज. दिस इज ट्रू. ये क्या है बेटा? सही है. वो क्लेवर कैसे था? क्योंकि उसने ट्रिक जो प्ले करी, एक तो जो गेटअप उसका था दैट वाज वेरी वंडरफुल,
ठीक है, to grab attention of the people instead of Hilsa fish. And secondly, the trick which he played in front of the palace while he was singing and dancing loudly, है ना, तो वो चतुर तो था ही, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के कैसे भी कोई भी काम में सफल हो जाता था, ठीक है. So this is true. Fourth, Gopal was too poor to afford decent clothes. गोपाल बहुत पुअर था क्या बेटा, कि वो अच्छे से कपड़े भी नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा था? नो, दिस इज फॉल्स. वाई? बिकॉज गोपाल वॉज अ जेस्चर इन किंग्स कोर्ट. एक तरह से वो कोर्टियर ही था राजा के कोर्ट में, तो उसको अच्छी खासी सैलरी या इनकम मिलती थी. येस और नो? तो ऐसा हो ही नहीं, वो तो सभ्य लोगों में था बेटा. ही वॉज अ सिविलाइज्ड मैन इन द विलेज. उसके पास कपड़ों की कमी तो थी ही नहीं, बट ही वॉज प्लेइंग अ चैलेंज, दैट इज वाई ही वोर्ड सच क्लोथ्स. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो कोई गरीब आदमी नहीं था, वो अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकता था. फिफ्थ, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग. राजा को जब ये प्रूव किया कि वो गलत हो गए, गलत सिद्ध हो गए, तो उनको गुस्सा आया. Did he feel angry? No, he started smiling. Ha ha ha. He started laughing as well. Yes or no? He was happy that Gopal has won the challenge and he lost. But still he was happy. ठीक है, राजा उसके बाद भी बहुत ही खुश थे. So this is false. राजा was not angry. He was happy instead. ठीक है, तो वो क्या हुए थे बेटा, गुस्सा नहीं हुए थे, वो खुशी हुए थे कि गोपाल चैलेंज जीत गया. एंड सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट मीन्स फॉल्स. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट टुडे, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट we will discuss the grammar section of the story. So hope you all understood this chapter very well. Keep reading. Have a good day, beta.